Hello, listening friends. नमस्कार श्रोता मित्रों, Welcome to this new series of programs. इस नई संदेश श्रृंखला में आपका स्वागत है। We are bringing you a new series entitled From Rubble to Rejoicing. हम आपके लिए एक नई संदेश श्रृंखला लेकर आए हैं जिसका नाम है प्रतिकूलता से आनंद तक, And it is from the book of Nehemiah. और ये है नहमिया की पुस्तक में से। So if you have a Bible throughout this series, open it to the book of Nehemiah. तो यदि आपके पास बाइबल है तो इस पूरी श्रृंखला के दौरान इसे नहमिया की पुस्तक पर खोलिए। Nehemiah was a man of devotion to God and prayer. नहमिया परमेश्वर और प्रार्थना को समर्पित मनुष्य था। Nehemiah was a man who could motivate others. नहमिया ऐसा व्यक्ति था जिसने दूसरों को प्रेरित किया। Nehemiah was the man best known for rebuilding the walls around Jerusalem in only 52 days. नहमिया को विशेषकर मात्र 52 दिनों में यरूशलेम के चारों ओर फिर से दीवार बनाने के लिए जाना जाता है। How was that done? ये कैसे किया गया? Because Nehemiah understood something that is very important. क्योंकि नहमिया ने एक बात को समझ लिया जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। If you understand it, it will change your life. यदि आप इसे समझ लें तो ये आपका जीवन बदल देगी। Here it is. वो ये है, 1 plus prayer equals a mighty power of God. एक जमा प्रार्थना कुल परमेश्वर की सामर्थ्य शक्ति। First, I want to give you some background from 1st and 2nd Kings. सबसे पहले मैं आपको राजाओं की पहली और दूसरी पुस्तक की कुछ पृष्ठभूमि बताना चाहता हूँ। In January of 588 BC, 588 बीसी के जनवरी महीने में the Babylonians surrounded the city of Jerusalem for 18 months. बेबीलोनियों ने यरूशलेम शहर को 18 महीनों तक घेरे रखा। Finally, in July of 586 BC, आखिर 586 बीसी के जुलाई महीने में the commander of the imperial guard of King Nebuchadnezzar of Babylon entered Jerusalem. बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर की शाही सेना के सेनापति ने यरूशलेम में प्रवेश किया। He destroyed the wall surrounding the city. उसने शहर के चारों ओर की दीवार को ढा दिया। He burnt the gates and wrecked the temple. उसने फाटक जला डाले और मंदिर को बर्बाद कर दिया। That was not all he did. उसने इतना ही नहीं किया। 2 Kings 25 tells us राजाओं की दूसरी पुस्तक 25 अध्याय हमें बताता है that he took the Hebrew people into Babylon as exiles. कि वो इब्रानी लोगों को बंदी बनाकर बेबीलोन को ले गया। He left only the poorest people behind so that they could work the vineyards. उसने केवल सबसे गरीब लोगों को ही पीछे छोड़ा ताकि वो अंगूर की बाड़ियों में काम कर सकें। From 586 to 430 BC, 586 बीसी से लेकर 430 बीसी तक the city was in ruins and the people were in despair. शहर नाश पड़ा था और लोग निराशाजनक दशा में थे। This was 75 years before Nehemiah returned from exile to rebuild the wall and the temple. ये नहमिया के निर्वासन से वापस आकर दीवार और मंदिर का पुनर्निर्माण करने से 75 वर्ष पहले हुआ। This return and rebuilding was the hardest thing the people of God had ever faced. ये वापसी और पुनर्निर्माण सबसे कठिन कार्य था जिसका परमेश्वर के लोगों ने कभी सामना किया। It was nothing short of a miracle. ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। But for miracles to happen, there has to be a willing recipient of the miracle. परंतु चमत्कार होने के लिए चमत्कार को ग्रहण करने वाले एक इच्छित जन का होना आवश्यक है। Nehemiah was born in exile. नहमिया निर्वासन में ही पैदा हुआ। He spoke the language of the Babylonians very well. वो बेबीलोनियों की भाषा अच्छे से बोलता था। He was well educated and hard worker and trustworthy. वो अच्छा पढ़ा लिखा, कठिन परिश्रमी और भरोसे लायक था। The Bible says that he was the cupbearer of the king of Babylon. बाइबल कहती है कि वो बेबीलोन के राजा का पियाऊ था। In those days, the cupbearer was one of the most trusted members of the king's staff. उन दिनों में पियाऊ राजा के कर्मचारी वर्ग के सबसे भरोसेमंद सदस्यों में से एक होता था। One of his duties was to guard the king's cup to make sure the wine was not poisoned. उसका एक कार्य ये था कि वो ये निश्चित करने के लिए राजा के प्याले की रखवाली करे कि दाखरस में जहर न मिला दिया जाए। He had the king's total confidence. राजा को उस पर पूर्ण भरोसा था। And as a trusted confidant, he had a position of great influence. और राजा का भरोसेमंद होने के कारण उसे एक बहुत ही प्रभावशाली पदवी हासिल थी। He was responsible for all that was going on in the palace. वो महल में होने वाले सारे कार्यों के लिए जिम्मेदार होता था। Those who remained behind in Judea needed a friend in the court. वो जो पीछे यहूदा में रह गए थे, उन्हें दरबार में रहने वाले एक मित्र की जरूरत थी।
and Nehemiah was there by God's divine appointment. और परमेश्वर की ईश्वरीय नियुक्ति से नहम्याह वहीं था। Now, if you have your Bible, please turn to Nehemiah chapter 1. अब यदि आपके पास बाइबल है तो कृपया खोलिए नहम्याह की पुस्तक, उसका 1 अध्याय, And let us read together. और आइए मिलकर पढ़ते हैं। हकलिया के पुत्र नहम्याह के वचन 20वें वर्ष के किस्लेव नामक महीने में, जब मैं शूशन नामक राजगढ़ में रहता था, तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सन्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भययोग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है, तू कान लगाए और आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इसराइलियों के लिए दिन रात करता रहता हूं, उसे तू सुन ले। मैं इसराइलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूं। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है और जो आज्ञाएं, विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे, उनको हमने नहीं माना। उस वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था, यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करूंगा, परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाएं मानो और उन पर चलो, तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की छोर में भी हों, तो भी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। अब वे तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग हैं, जिनको तूने अपनी बड़ी सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा छुड़ा लिया है। हे प्रभु, विनती यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं कान लगा, और आज अपने दास का काम सफल कर और उस पुरुष को उस पर दयालु कर। मैं तो राजा का पियाऊ था। Now, I want you to notice several things. अब मैं चाहता हूं कि आप कई बातों पर गौर करें। In chapter 1, verse 2, 1 अध्याय के 2 पद में Nehemiah asked some visitors from Judea about the conditions in Jerusalem. नहम्याह ने यहूदा से आए कुछ लोगों से यरूशलेम का हाल पूछा। They replied that the remnant in Judah who survived the exile were in great trouble and distress. उन्होंने उत्तर दिया कि जो लोग निर्वासन से बचकर यहूदा में रह गए थे, वो बहुत दुर्दशा में हैं। The walls of Jerusalem were broken down, यरूशलेम की दीवारें टूटी पड़ी हैं and its gates were burnt with fire. और इसके फाटक आग से जले हुए हैं। The temple of the Lord was in ruin. परमेश्वर का भवन दुर्दशा में था। Now there are several ways that people respond to bad news. अब लोग बुरी खबर मिलने पर कई तरह से प्रतिक्रिया करते हैं। They can get angry and rant and shout to no real result. वो क्रोधित होते, आपे से बाहर होते और चिल्लाते हैं जिसका कोई परिणाम नहीं मिलता। They can get depressed and worry to the point of illness. वो इतने निराशा और चिंता में घिर जाते हैं कि बीमारी तक पहुंच जाते हैं। Or they can feel proper anguish that drives them to their knees. या वो ऐसी असल वेदना को महसूस करते हैं जो उन्हें घुटनों पर ले आती है। The condition of the wall of Jerusalem was very important. यरूशलेम की दीवार की दशा बहुत महत्वपूर्ण थी। The brokenness of the wall signifies the vulnerability of God's people. टूटी हुई दीवार परमेश्वर के लोगों की असुरक्षा को दिखाती थी। The brokenness of the wall signifies that the people of God had no protection whatsoever. टूटी हुई दीवार दिखाती थी कि परमेश्वर के लोगों के पास जरा भी सुरक्षा नहीं थी। Some of you listening to me today may be feeling helpless. आप जो आज मुझे सुन रहे हैं, आप में से कई असहाय महसूस कर रहे होंगे। You may have been relying on someone or something for a wall of protection and they let you down. सुरक्षा की दीवार के लिए शायद आपने किसी व्यक्ति या किसी वस्तु पर भरोसा रखा होगा और उन्होंने आपको निराश किया। You may have been relying on someone or something for a wall of comfort and they disappeared. तसल्ली की दीवार के लिए आप किसी मनुष्य या किसी वस्तु पर भरोसा करते रहे हैं और वो गायब हो गए। Now that the walls are down in your life, there is only one way that you can look, and that's up. अब आपके जीवन की दीवारें गिरी पड़ी हैं और एक ही मार्ग बचा है जहां आप देख सकते हैं और वो है ऊपर। The times when you feel vulnerable in your life आपके जीवन के वो समय जब आप असुरक्षित महसूस करते हैं can be the times when you feel the power of God
and the hand of God for the first time. वही वो समय बन सकते हैं जब आप पहली बार परमेश्वर के हाथ और परमेश्वर की शक्ति को महसूस करेंगे। The days when you feel helpless in your life आपके जीवन में वो दिन जिनमें आप असहाय महसूस करते हैं can be the days when you experience the miracle of God for the first time. ये वो दिन बन सकते हैं जब आप पहली बार परमेश्वर के चमत्कार को अनुभव कर सकते हैं। When walls are crumbling in your life or in your business or in your family, don't get angry. जब आपके जीवन की या आपके व्यवसाय की या आपके परिवार की दीवारें टूट रही हैं तो क्रोधित ना हो। Don't be filled with despair. निराशा से ना भर जाएं। God wants you to look to Him. परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी ओर देखें। God wants you to do what Nehemiah did. परमेश्वर चाहता है कि आप भी वही करें जो नहमिया ने किया। Drop to your knees. अपने घुटनों पर गिर जाइए। God wants to fill you with the power of the Holy Spirit. परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा की शक्ति से भरना चाहता है। God wants you to know the protection and peace that can only come to you when you surrender yourself to Jesus Christ. परमेश्वर चाहता है कि आप उस सुरक्षा और शांति को जानें जो केवल तभी आपको मिल सकती है जब आप अपने आप को यीशु मसीह के अधीन करते हैं। In Nehemiah's time, नहमिया के समय में as they walked past the broken walls and burned gates of the city, जब वो शहर की टूटी दीवारों और जले हुए फाटकों के पास से गुजरते थे, unbelievers were asking the people of God, अविश्वासी लोग परमेश्वर के लोगों से पूछते थे, who is your God? कौन है तुम्हारा परमेश्वर? Where is your God? कहाँ है तुम्हारा परमेश्वर? And there was an irony here, and it was this. और यहाँ एक व्यंग है और ये है, While the walls were down and the demons in hell were laughing and mocking, जब दीवारें गिरी पड़ी थी और नरक में दुष्ट शक्तियां उपहास करते हुए खुश हो रही थी, and while the people were in distress, और जब लोग निराशा में थे, the temple was still functioning daily. मंदिर फिर भी प्रतिदिन क्रियाशील था। Worship and sacrifices were routinely offered, आराधना और बलिदान नित्य क्रम से चढ़ाए जाते थे, and people actually were going on with their business. और लोग असल में अपने अपने कार्यों में लगे हुए थे। Think about this. इस बारे में सोचिए, The walls were down, दीवारें गिरी पड़ी थी, but the average person in Judea didn't seem to care. परंतु लगता है यहूदिया के आम आदमी को इसकी कोई परवाह नहीं थी। In fact, they were spiritually paralyzed. बल्कि आत्मिक रूप से वो अपाहिज थे। Like some believers today, they were not concerned about the spiritual condition of the people. आज के कुछ विश्वासियों की तरह ही उन्हें लोगों की आत्मिक दशा की कोई परवाह नहीं थी। God does not work through people who keep God out of sight and out of mind. परमेश्वर ऐसे लोगों के द्वारा कार्य नहीं करता जो परमेश्वर को दृष्टि से और मन से दूर रखते हैं। Non-believers today are asking, आज गैर विश्वासी पूछ रहे हैं, where is your God? कहाँ है तुम्हारा परमेश्वर? What can he do? वो क्या कर सकता है? If you are a believer and someone asks you that question, tell him to wait. यदि आप एक विश्वासी हैं और कोई आपसे ये प्रश्न पूछता है तो उससे कहें कि प्रतीक्षा करें। Then get into your prayer closet and cry to the Lord, फिर अपने प्रार्थना कक्ष में जाएं और प्रभु को पुकारें and God will answer you. और परमेश्वर आपको उत्तर देगा। Because 1 plus prayer equal great power. क्योंकि एक जमा प्रार्थना कुल महान शक्ति। Today, God is raising up Nehemiahs all over the world. आज परमेश्वर पूरे संसार में नहमिया खड़े कर रहा है। God is raising up men and women whose anguish will drive them to their knees in prayer. परमेश्वर ऐसे पुरुष और स्त्रियों को खड़े कर रहा है जिनकी वेदना उन्हें घुटनों पर लाएगी। And just as a queen once said about a humble man of God, और जैसे एक रानी ने परमेश्वर के एक नम्र जन के बारे में एक बार कहा, I fear this man more than all the armies of my enemies because he knows how to pray. मुझे अपने सब शत्रुओं की सारी सेनाओं से ज्यादा डर इस मनुष्य से लगता है क्योंकि वो प्रार्थना करना जानता है। The world will say that about you if you know how to intercede before God. संसार आपके बारे में ऐसा ही कहेगा यदि आपको परमेश्वर के सामने प्रार्थना करना आता है। Why? क्यों? Because God does business with the man or the woman who means business. क्योंकि परमेश्वर उसी पुरुष या स्त्री के साथ कार्य करता है जो कार्य के प्रति गंभीर है। How did Nehemiah go about God's business? नहमिया परमेश्वर के कार्य में आगे कैसे बढ़ा? First, he identified the problem. पहले उसने समस्या को पहचाना। The walls are down. दीवारें टूटी हुई हैं, The gates are burned. फाटक जले हुए हैं, The temple is in ruins. मंदिर दुर्दशा में है, God's people have been mocked. परमेश्वर के लोगों का उपहास हो रहा है, And even worse, God's name has been mocked. और इससे भी बुरा ये कि परमेश्वर के नाम का उपहास हो रहा है। Secondly, दूसरा, he took it to the Lord in prayer. वो इसे प्रार्थना में परमेश्वर के सामने ले गया। He did not lash out at this group or that group. वो इस समूह या उस समूह पर नहीं भड़का,
He did not take it out on this person or that person. इसका दोष उसने इस व्यक्ति पर या उस व्यक्ति पर नहीं मढ़ा। He understood that he too was part of the problem. उसने समझा कि वो भी समस्या का हिस्सा था। He did not just pray for their sins. उसने केवल उनके पापों के लिए प्रार्थना नहीं की। No, he said our sin. नहीं, उसने कहा हमारे पाप। Nehemiah had all the security and the comfort that any one man could want. नहमिया के पास वो सारी सुरक्षा और सुख आराम था जो कोई व्यक्ति चाह सकता है। He was 1,000 miles away. वो 1000 मील दूर था। Why should he get involved? उसे इसमें शामिल क्यों होना चाहिए? He was doing fine for himself. वो अपनी जगह अच्छा था। Why should he be broken before God? उसे परमेश्वर के सामने टूटने की क्या जरूरत थी? Why shouldn't those who are in Judea stop being indifferent? वो जो यहूदिया में रहते हैं वो उदासीन होना क्यों नहीं छोड़ते? Why shouldn't the religious hierarchy be concerned about this? धार्मिक सभा को इसकी परवाह क्यों नहीं होनी चाहिए? But Nehemiah said nothing of the sort. परंतु नहमिया ने ऐसा कुछ नहीं कहा। He knew that these people had ceased to be spiritual. वो जानता था कि इन लोगों ने आत्मिकता को छोड़ दिया है। He knew that they conformed to the Babylonian lifestyle. उसे पता था कि इन लोगों ने बेबीलोनी जीवन शैली को अपना लिया है। He knew that they ought to know better than to be indifferent. उसे पता था कि उन्हें उदासीन होने से कहीं अधिक जानने की जरूरत थी। But none of that mattered to him. परंतु इस सब से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। What mattered was that Nehemiah knew that 1 plus prayer equaled great power. उसके लिए एक ही बात महत्वपूर्ण थी और वो थी 1 जमा प्रार्थना कुल महान शक्ति। My listening friends, God is not impressed with numbers. मेरे श्रोता मित्र, परमेश्वर संख्या से प्रसन्न नहीं होता। If you want to see God at work, यदि आप परमेश्वर को कार्य करते देखना चाहते हैं, give him a man or a woman who seek nothing but his glory. तो ऐसे पुरुष या स्त्री को उसके पास लाइए जिसे परमेश्वर की महिमा के अलावा और किसी चीज की तलाश नहीं है। And watch what mighty works God can do. और देखिए परमेश्वर कैसे सामर्थी काम करता है। Do you know what really broke Nehemiah's heart? आप जानते हैं असल में नेहमिया का दिल किस बात से टूटा? It wasn't the broken walls or the ruined city or the burnt gates. इसका कारण टूटी हुई दीवारें या जले हुए फाटक या बर्बाद शहर नहीं था। But what really broke Nehemiah's heart was the name of God being disgraced. परंतु नहमिया का दिल असल में इस बात से टूटा कि परमेश्वर के नाम की नामधराई हो रही थी। The Bible said Nehemiah moaned and wept as he fasted and prayed. बाइबल बताती है कि नहमिया उपवास और प्रार्थना में रोया और विलाप किया। My listening friend, I want to ask you a question. मेरे श्रोता मित्र, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। When was the last time you wept for the sin of those who are blaspheming the name of your Lord? पिछली बार आप कब उन लोगों के पापों के लिए रोए जिन्होंने आपके प्रभु के नाम की निंदा की? When was the last time you wept over your own sin? पिछली बार कब आप अपने खुद के पापों के लिए रोए? When was the last time you wept over the sin of apostasy in the church? पिछली बार कब आप कलीसिया में परमेश्वर को त्याग देने के लोगों के पाप के लिए रोए? When was the last time you wept when you heard the name of Jesus being mocked? पिछली बार कब आप रोए जब आपने यीशु के नाम का उपहास होते सुना? Nehemiah was anguished that the name of God was ridiculed. नहमिया वेदना में था कि परमेश्वर के नाम का ठट्ठा किया जा रहा था। So he dropped to his knees and he prayed a threefold prayer. तो वो घुटनों पर गिरा और उसने 3 सतही प्रार्थना की। And I want to tell you about the threefold prayer in our next broadcast. और मैं अपने अगले प्रसारण में आपको इस 3 सतही प्रार्थना के बारे में बताना चाहता हूँ। Until then, I pray that you will learn how to weep over sin. तब तक मेरी प्रार्थना है कि आप पाप पर रोना सीखें। Until next time, I wish you God's richest blessing. अगली बार तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूं।